उसमें डाल दोगे क्या तुम लोग ग्रुप में? Sir, we can. Sir, I think I can post it in the group. हाँ प्लीज कर देना, है ना? और अगर नहीं कर पाओ तो मुझे बताना, मुझे भेज देना, आई विल पोस्ट। जस्ट ओपन, उसको लिंक को ओपन रखना, आई विल कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। तो टुडे वी आर ट्राइंग, वी विल लर्न अबाउट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। Excuse me, sir. बोलिए। Sir, in the before river swimmer problem and in that boatman problem, I wasn't able to find that theta. हम्म। So, अभी can you please repeat how to find the theta? अ, अभी इसको पढ़ लो तुम, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं तुम्हें। Okay, sir. ठीक है, हाँ। करेंगे, उसका डाउट सेशन होना है अभी। आई डू इट। सो दिस इज द रिवर, सॉरी, रिवर है ही नहीं यहाँ, इट्स अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। सो वी हैव दिस ट्री हियर। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो इसको, ताकि टाइम तुम्हारा ना बर्बाद हो। तो ये कोई बहुत बढ़िया सा पेड़ बन गया है, बना लो इसको तुम लोग, है ना? तो इस पेड़ के बाद अभी वी आर ट्राइंग टू लर्न लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है। So this tree is there on the ground and a man is passing. मैन की जगह तुम खुद चले जाओ यहाँ। ठीक है। सो यू आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ। ये ट्रैक है जिस पे तुम चल रहे हो। ठीक है। आप हो गए हैं ये यहाँ पर। ये तुम कुंफू कराटे नहीं कर रहे हो, तुम पैदल चल रहे हो। ठीक है, इस पे यू आर वॉकिंग ऑन दिस लाइन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग इट, राइट? सो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन दिस लाइन, क्या होगा? माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, when will you be nearest to this tree?
Sir, when we are perpendicular to the tree, like we are in the same as the perpendicular line drawn from the tree, when we are at that point, we'll be nearest. Yes. And all of you understood this. You will be closest to this tree, right? At which point? For that, what you will do is, you will see you are sitting on tree, or the observer is at tree, right? With respect to this observer, ये नीले रंग का ऑब्जर्वर है, ठीक है? With respect to this observer, or with respect to tree, you will draw your line of motion of this man, ठीक है? And you will draw a perpendicular on this line, right? So this foot of the perpendicular, let's say this point is P. This foot of the perpendicular is the point where you will be closest to this tree. Got it? Everybody. हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो क्या क्या किया हमने? Yes, The sir. first step we did is to find the least distance of approach. To find the least distance of approach between two objects, we first is calculate the relative velocity between them, ठीक है? And draw the line of motion of one of those with respect to the other object. Clear? This was the first thing which we did. ये जो blue color की line बनाई थी मैंने यहाँ पर, that was the line I drew, right? Hello? Yes. Yes, यहाँ sir. तक किसी को कोई डाउट है भाई? Sir, so the object may or may not be in a fixed position, right? Because relative So velocity. one of those object you have to take, मतलब when you are finding the velocity of one object with respect to the other, so you are sitting on the head of the other object only, na? What if this tree starts moving, for example? So you are on the tree. So from tree you will be observing that person. Okay, sir. समझ रहा है? भाई सपोज करो, सिंपल प्रोसेस है, देखो इसको बेवजह कॉम्प्लिकेट नहीं करना, दिमाग इधर उधर मत लगाना है, सिंपल सी चीज है। सपोज करो एक ये रेड डॉट है और दूसरा ये ब्लू डॉट है, ठीक है? रेड डॉट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, blue dot is moving in this direction. The thing is, so at time t is equal to 0, there will be some initial condition which is already given. So it says this is at time t is equal to 0. These are the locations of these two dots. ठीक है? Hello. So this Yes. point is, so the distance between them is, ये सब दिया होगा तुम्हें, ठीक है? वो जो जो डेटा दिया है उसको, जो दिया है उसको रख लेते हैं जमा करके, ठीक है? उससे मुझे कोई मतलब नहीं फिलहाल, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएगा। बट अभी क्या करना है? नाउ एक रेड डॉट है, एक ब्लू डॉट है, तो व्हाट यू विल डू इज, भाई you will find velocity of red dot with respect to blue dot and plot this line, ठीक है? तो क्या हुआ इसका मतलब? You sit on the head of blue dot and see where is red dot going. So this was the direction of velocity of blue dot with respect to ground. This is velocity of red dot with respect to ground. समझ आया नहीं आया? हेलो? तो VRB क्या है? It's VRG
minus VBG. Yes or no? Everybody. Yes, sir. Yes, sir. Now you plot this line, plot this vector VRB. Let's say VRB is along this direction. Let's say VRB is Excuse me, along. sir. हाँ बोलो. Sir, may I use the washroom? हाँ. This is VRB. Suppose, let's say, हाँ, हो सकता है जरूरी नहीं है इधर हो ये. But let's say this is VRB. Now what will be the least distance of approach? What will be the least distance of approach? How will you find it? You will drop a perpendicular from blue dot on this line. This was the reference point. Yes or no? Everybody. कौन यहाँ Yes. पे reference था? Blue dot reference था. तो blue dot से इस teal blue color की line पे perpendicular drop कर दो. So this is your least distance of approach. Or this is the length at which both of them are closest to each other. मैंने देखो ये रफ में मतलब मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, हो सकता है ये कचरा हो, पर दिस इज द प्रोसेस. आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस. अंडरस्टूड एवरीबडी? इवन इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. हेलो. तो यहां पर बच्चों, यहां पर we did the same thing. First is calculate the relative velocity between them and draw the line of motion of one of those with respect to the other. Second, drop a perpendicular from the reference object on the line of motion drawn in first step. ठीक है. The length of this perpendicular line is the least distance of approach between the two objects. Clear? Everybody. Yes, बोलो sir. बे हाँ या ना. Yes. इसको पढ़ लो. Yes. समझ आ गया है तो लिखो. नहीं समझ में आया है तो पूछो, मैं तुम्हें फिर से समझाऊं. ठीक है. पर यही Should you प्रोसेस also है. draw this? Obviously you have to draw. Obviously you have to Okay. draw, or else how will you understand? Okay. So Sir, मेरा हाँ. एक sir, I did not understand like while Hmm. its object is moving, how do we find the least distance of approach? Because so then the reference point will keep on changing, right? Because if the person is पर moving, कोई एक पॉइंट तो तुम्हें देखो, जब यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर बैठ गया तो मेरे रिस्पेक्ट में तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे हो गया ना. हाँ, इफ यू आर सिटिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दिस Yes. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू. यस और नो? oh yes, because outside the हाँ, okay, तो बात ही खत्म हो गई ना फिर तो. okay, yeah, got it. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बाहर खड़े होके देखूंगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए. बट इफ आई make one of those as the reference object, so that is the beauty of relative motion. ठीक है. Sir, LDA full form. Least distance of approach. Okay.
Once you are noted, please type done in the comment window. Okay, all of you. I hope all of you have noted it. Yes or no? Sir, last point. Mm-hmm. अरे श्रीमोही, तुम्हारा वो ट्रिग्नोमेट्री वाला इशू सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, अभी थोड़ा बहुत वो फिर से रीड करने से अभी थोड़ा इजी लग रहा है। हम्म। समय देना है बेटा, इसको समय दोगी ना, जितना समय दोगी उतना ये चमकेगा, ठीक है? यस सर। सर डन। चलो, तो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. Okay. Follow these steps and solve it. Two cars. A, this is moving due north. Moving due north. With a speed of 10 meters, sorry, let's say 25 meters per second. And B, which is moving due west. With a speed of say 10 meters per second, or let's say 15 meters per second. ठीक है? At some instant are at a distance of 10 kilometers at an instant when A is northeast of B. Northeast of B. Find the least distance of approach between them. नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ?
the line joining A and B will be making an angle of 45 degrees with the horizontal. समझ आया? नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? All of you are aware about north east, northwest, southeast, Yes, southwest. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए आपको पता है, तो आप लोग एक्ट अकॉर्डिंगली. Sir, so the reference points are the point where the car reaches, right, when they are at a 10 kilometer difference. That is the reference. Obviously, that is your reference diagram ना. नहीं तो कहाँ से reference बनाओगे उसको? वो करना ही पड़ेगा ना, तुम्हें चाहिए ही वो तुमको. So this is northeast. This is southwest. This angle is 45 degrees. Okay? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो तुम्हारी बुद्धि में आता हो, 10 मिनट है तुम्हारे पास, आराम से सॉल्व करो. फॉलो द स्टेप्स. इफ यू गेट द करेक्ट डायग्राम, तुम्हारा काम बन जाएगा. Sir, the resultant nickel gas from there, so we have to draw perpendicular between them, but वो कहाँ से करना है वो समझ नहीं. भैया, दिमाग तुम्हारा तुम्ही को लगाना है. मैं मेहनत नहीं करूंगा तुम्हारे लिए. वाई शुड आई डू इट? ये step. तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग, अकल खर्च करो. बहुत सिंपल सा सवाल है ये. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. बेसिक. द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ वेक्टर्स. दैट्स इट. वो भी नहीं आता है तो प्लीज गो एंड स्टडी वेक्टर्स अगेन. उसके 3 4 5 एक्सरसाइज दिए हुए मैंने, करो उसको सॉल्व. देखो इधर आओ. ये मैंने 45 डिग्री वाली जो लाइन है यहाँ शिफ्ट कर दी है. देखो ध्यान से सब. ठीक है. ये दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस. और
ठीक, यही होगा ना, 45 डिग्री वाली लाइन ऐसी थी ना। हाँ, तो दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। ओहो, माय बैड। नहीं चलो, उसमें क्या है। So we और can do it इसमें on the second quadrant also, right? Because I did in the second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में ही एक्चुअली सवाल आसान हो गया तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम इसमें फंसते थे। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, फिर फंसा लेंगे तुम्हें, कभी आज नहीं फंसा पाए तो। ठीक है, ये तो बहुत ही झड़ा सवाल हो गया अभी, मजा ही खराब कर दिया मैंने इसका, हट। नहीं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आधा बच्चा तो डायग्राम ही नहीं ड्रॉ कर पाता, वही मैं तभी सरप्राइज था कि कैसे ड्रॉ कर लिया तुम लोग। फिर मुझे लगा नहीं, तुम लोग होशियार बच्चे कर सकते। तो ये है हमारा वेक्टर ए, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, दिस इज वेक्टर ए। एक्चुअली इसमें पता है, इसमें यही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, और रुको रुको बना के देखते हैं, रुको, वेट वेट, सॉल्व करके देखें फिर बताओ। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑल ऑफ यू से यस ऑन। Yes, sir. दिस इज 25 j cap, and this is velocity of v with respect to ground, this is 15 minus I cap। दोनों में से किसको रेफरेंस बनाना चाहते हो तुम, बताओ किसको रेफरेंस बनाओ मैं, ए को कि बी को। I बोलो think बे, I Sir, B. think बी को। चलो, बी ए के बाद आता है इसलिए वी ए बी, ये क्या हो जाएगा, वी ए जी माइनस वी बी जी। sir root 725. नहीं नहीं, वो सब चाहिए ही नहीं मुझे, तुम उसमें फंसे रहो, करते रहो उसको, रूट 725 ABCDEFG, जरूरत ही नहीं थी उसकी। 15 माइनस आई कैप, मैं तो बोला तुमको वेक्टर ड्रॉ करना है, तुमने ड्रॉ ही नहीं किया। दिस सर इज वो 15 बीच आई से कैप। साइड में किससे आ गया? कौन? वो बीच से 45 डिग्री एंगल साइड में किससे आ गया, वही नहीं समझ में। अरे अनपढ़, सुनो, ये बी है, ये ए है, क्या लिखा है कॉप, इसमें क्या लिखा है पढ़ो जरा। are at a distance of 10 kilometers at an instant when A is northeast of B। हो सकता है या नहीं हो सकता है? जरूरी है क्या सब ओरिजिन से देखेंगे? अच्छा मुझे नहीं। बी के रिस्पेक्ट में ए चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट में है या नहीं है? हाँ ये कैसी बातें करते हो तुम लोग, मतलब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है मेरे बच्चों में, है ना, मतलब मेरे को कष्ट हो जाता है इसमें। अब क्या होगा, यहाँ देखो इधर आओ। सो दिस वी ए बी इज 15 आई कैप प्लस 25 जे कैप। तो जब भी तुम ए को बी के रिस्पेक्ट में देखोगे, क्या करोगे, जब भी तुम ए को बी के रिस्पेक्ट में देखोगे, से हेलो, Us. यस। Yes, sir. जब भी तुम ए को बी के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो ए कहा जा रहा है, ए इज मूविंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो? Yes, sir. दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल कैसा बनेगा इसमें, तो tan phi, I have to find the direction of this vector, 25 upon 15, so this is 5 5s are, this is 5 3s are, right? Hello? यस सर। Yes, sir. So this is 5 by 3, this is greater than 1, yes or no?
तो फाई इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि tan 45 1 होता है। देखो, आई हैव टू ड्रॉ दिस वेक्टर, राइट? एज आई टोल्ड यू, आई हैव टू ड्रॉ दिस वेक्टर। तो मैं इधर ड्रॉ करूं, इधर ड्रॉ करूं, कहां ड्रॉ करूं? कहां ड्रॉ करेंगे? तो ऑब्वियसली मुझे 45 डिग्री इस नॉर्थ ईस्ट, इस लाइन से, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन है, इससे ये इधर होगा या इधर होगा, ये मुझे पता नहीं था। ये मैंने कैसे निकाला? बाय लुकिंग एट द वैल्यूज। गॉट इट? हेलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Got it. तो अब ये जब मुझे वैल्यूज समझ में आई, तो दिस इज हियर, राइट? और ये जो एंगल आएगा, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, this angle this angle is angle phi. Got it? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब नॉर्मल ये क्वेश्चन होता तो क्या करते? इसको इसको ऐसे एक्सटेंड करते, ठीक है? ये लाइन एक्सटेंड कर दी ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की लाइन एक्सटेंड की या नहीं की? हाँ ना बोलो। हाँ sir. Sir, line ऐसा ही होगा ये resultant तो? क्या? Sir, ये समझ नहीं आया। अबे The line this is मतलब resultant पगला तो? गए हो क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्यों बदलेगा बे? Sir, ये इस डायरेक्शन में क्यों होगा? किस डायरेक्शन में क्यों होगा? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी। मैंने कब, मैं यहां थोड़ी नीचे खींच रहा हूं इसको, नीचे तो मैं इसलिए खींच रहा हूं कि भाई दिस हाँ, इवेंट ठीक हैज है। ऑलरेडी, अरे इट्स अ लाइन, आई कैन ड्रॉ इट एनीवेयर। इट्स लाइन ऑफ मोशन ऑफ दिस वी विथ रिस्पेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब से भी देखना चालू किया इसको, शुरू से, मतलब इवन बिफोर द इवेंट हैज हैपेंड, मतलब जब ये चलना शुरू हुए, बिफोर वी ऑब्जर्व, बिफोर वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. अब तुम क्या करते इस पे? अब तुम यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और तुम इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच लिखोगे। पर सी, इन दिस केस, इन दिस केस ये पार्टिकल जा कहां रहा है? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, यस और नो? यस सर। तो ये तो यहां से जा चुका है ना ऑलरेडी, ये यहां पे पड़ा हुआ है, अब ये यहां से आगे ही जाएगा। हेलो? Okay. sir. When we started observing it, this object A was at this point. ये यहां पे है क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बनेगा क्या? हो sir. कोई, अरे वो हो चुका है इवेंट। विल इट हैपन इन फ्यूचर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब होता है कि वो फ्यूचर में होने वाला इवेंट है। ये दोनों कब सबसे ज्यादा पास रहेंगे? हेलो? Sir, it's not gonna happen again. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। तो इसलिए मैंने तुमसे बोला ना, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें गलत दे दिया था, मुझे इसको उल्टा करना था। ये ए की जगह पे मुझे लिखना था व्हेन बी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। अब ये सवाल तुम्हारा लेजिट क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्व करके लाना है अगली क्लास में। समझ आया? सर मेरा लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। मत समझो इसको, तुम घर जाओ आराम से सोचो, जो तुम्हें सिखाया है समझने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने, क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों, ये यही क्यों कर रहा हूं मैं? थिंक अबाउट इट, कि यही क्यों करना था। ट्राई टू रीजन इट ऑन योर ओन। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। कब होती तुम्हारी नेक्स्ट क्लास? मंडे को? Yes, sir. हाँ, मंडे मिलेंगे तो इसको खत्म करेंगे, ये डिस्कस करेंगे इसको। और ये बी और ए में चेंज कर लो, चेंज दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। ठीक है? सर किस में चेंज करना पड़ेगा? अरे यार, लिखा हुआ है, काट के वहां पे देखो ना तुम फोटो। अबे अच्छा तुम अच्छा। क्या, तुम दिमाग बेच के आते हो क्या क्लास में? है
सामने ड्रॉ करके दिखा रहा हूं भैया, काट रहा हूं, बी लिख रहा हूं एक ही जगह और बोल रहा हूं 2 बार। उसके बाद कह रहा है किसमें चेंज करना है। अबे मंद बुद्धि थोड़ी हो बे। हाँ, प्लीज इसको आप लोग करके लाइए अगली क्लास में। लिखा था तुमने Yes. कि हाँ लिखना सर। है Yes, अभी sir. भी? लिख ली। अनुभव लिखना है बेटा अभी भी? सर हाँ, एक मिनट। लिखो लिखो। निधीश, वेदांत, अरुणाभ, तुम लोग बेटा एक दिन ना तुम सब पाओगे प्रसाद। मैं तुम लोग को घुसवाऊंगा, आने नहीं दूंगा साले क्लास में। तुम मत आओ अगली बार से कैमरा ऑन करके। तुम्हारा कैमरा जब ठीक है तो तुम लोग ऑन नहीं करना है, खराब है तो ऑन नहीं करना है। तो मत ही आओ तुम सबको समझ में आएगा कि कैमरा ऑन करवाना जरूरी है फिर। और सर वो जो रिकॉर्डिंग का मेरा कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुआ था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ वो उसे मतलब मैं आए। मैंने रिकॉर्ड किया है बेटा, चिंता मत कर। मैं ठीक है अभी सर। अपलोड कर दूंगा, दे दूंगा, मैं भेज दूंगा तुझे। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर प्लीज़ वो अपलोड कर देना क्योंकि अभी मेरा अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। तो आगे आधे 1 घंटे में करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से रखिए, ईमानदारी से काम करिए और फिर देखते हैं क्या करना है। होमवर्क ये करके लाना अगली क्लास में। ठीक है, सर कल का रिवीजन चलो। सेशन होगा? हाँ है 12 बजे। ओके। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।